بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں پچھلی کلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے پچھلی کلاس میں ہم نے حروف تہجی کے مخارج ہیں اور جہاں سے وہ ادا ہوتی ہیں اعضاء کے متعلق کی کہ کتنے اعضاء ہیں، کتنے مخارج ہیں، مخارج کیا ہوتا ہے، ان کے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ تو آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہ قرآن کریم یا عربی کے حروف تہجی جو ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جو جگہ مقرر کی گئی ہیں مخرج کہتے ہیں۔ زیادہ تر مشہور جو ہیں وہ 17 مخارج بیان ہیں۔ اب یہ 17 مقام جو ہیں، یہ 17 جگہ جو یہ 5 اعضاء تکلم میں واقع ہیں۔ اب ان کو تھوڑا ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اس کو بار بار پریکٹس کرنا ہے تاکہ آپ کو ان اعضاء اور ان مخارج کی معلومات یا ان پر دسترست ہو جائے، یعنی کافی درست ہو جاتی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد۔ سب سے پہلے خیشوم، ناک کے اندر والی یعنی ناک سے پیچھے یہ خالی جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ اس فضا کو خیشوم کہتے ہیں اور اس سے جو آواز نکلتی ہے اسے غنہ کہتے ہیں۔ اب یہ غنہ ایک ٹرم ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ تو اب اس جگہ سے 2 حرف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے میم اور دوسرا ہے نون۔ اب آپ اگر ناک بند کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ حرف جو ہے غننے کے ساتھ یا درست طریقے سے ادا نہیں ہوں گے، جیسا کہ میم میم، نون نون۔ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ ناک کی فضا سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے دونوں ہونٹ، دونوں ہونٹوں کے 2 مخرج ہیں، یعنی ان دونوں ہونٹوں سے جو حرف ادا ہوتے ہیں 2 مخرج سے ادا ہوتے ہیں 4 حرف۔ سب سے پہلا مخرج جو ہے وہ ہے حرف فا۔ تو فا جو ہے تو یہ اوپر والے جو ثنایا ہیں، یہ سامنے والے دانت، ان کی نوک ہے اور اس نوک کو اس نیچے والے ہونٹ کے اوپر لگانے سے جو ہے فا ادا ہوتا ہے۔ اب آپ فا پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، جیسے فا فا اس طرح پڑھیں گے تو اس فا کا مخرج جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مخرج جو ہے اس میں 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف با ہے اور دوسرا میم ہے اور تیسرا واو۔ اب ان تینوں حرف کو آپ جب ادا کریں گے تو آپ کے ہونٹ جو ہیں دونوں آپس میں مل جائیں گے، ملنے سے یہ تینوں حرف جو ہیں ادا ہوں گے۔ لہٰذا ہونٹوں کے جو مخرج ہیں 2 ہیں جن سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں حرف کو پڑھ سکتے ہیں، با با۔ ان دونوں حرف کو، دونوں ہونٹوں کو آپ ملائیں گے تو با ادا ہو۔ اس کے بعد میم ہے، میم کو بھی آپ پڑھیں گے تو یہ دونوں ہونٹ جو ہے آپس میں ٹکرائیں گے۔ اور اسی کے بعد واو ہے، واو پڑھنے سے بھی یہ جو ہے غنچے کی شکل یا ملنے کے بعد گول شکل جو ہے اختیار کر جائیں گے، تو ان کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا مخرج ہے وہ ہے جو، یعنی یہ منہ کی خالی جگہ اور منہ سے پیچھے جو حلق تک جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو جوف کہہ سکتے ہیں۔ اب اس جوف سے جو ہے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی حروف مدہ جو ہیں وہ ان جوف سے جو ہے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا جو اعضاء تکلم ہے وہ ہے حلق۔ 3 حصے ہیں یا اس کے 3 مخرج ہیں۔ پہلا مخرج جو ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، اس حصے سے جو ہے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی تو اس سے جو حرف ادا ہوتے ہیں ایک ہے غین، دوسرا ہے خا۔ اب آپ ان دونوں کی پریکٹس کریں گے تو یہاں پر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں سے غین جو ہے یہیں سے ادا ہوتے ہیں اور خا بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کی پریکٹس کریں، غین غین، خا خا خا، تو یہاں سے جو ہے ان 2 حرف ادا کرنا ہے، تو اس کو ابتداء الحلق بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد وسط الحلق یا وسط الحلق یعنی درمیانہ حلق، حلق کا درمیانی حصہ، یہ والی جگہ جو جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھری ہوئی جگہ، اس جگہ سے بھی 2 حرف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ پہلا حرف ہے عین اور دوسرا ہے ہا۔ جو جیم کے بعد ہا ہوتا ہے وہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کی پریکٹس کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ عین عین، ہا ہا
हा इस तरह पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ से जगह होती है वो हरकत में आ जाए। इसके बाद आखिरी हलक का हिस्सा या आखिरुल हलक, उससे भी 2 हर्फ अदा होते हैं। पहला हर्फ जो है वो है हमजा और दूसरा है हा। हा जो गोल दायरे वाली होती है उस हा को जो है यहाँ से अदा करना है, यानी हलक के आखिरी हिस्से से। तो इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमजा 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 पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से या सीने से हमारा जोर है या आवाज है वो निकलती है। इसी तरह आप हा 2 आंखों वाली हा हो या 1 आंख वाली गोल हा होती है वो यहाँ से अदा करनी पड़ती है। बस यही फर्क आपने जहन में रखना है, इसीलिए तजवीद को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अक्सर जो है हम हा को हा जो है ऐसे ही पढ़ देते हैं, जैसा कि दरमियाने हलक से पढ़नी होती है हम यहाँ से अदा कर देते। इस गलती को हमने दुरुस्त करना है। तो इस तरह जो है हलक के 3 हिस्से या 3 मखरज जो है हमने सीखे, जिनसे 6 हरूफ हैं अदा होते हैं, यानी 1 मखरज से 2 हर्फ, इसी तरह 3 मखरज से जो है हमारे 6 हरूफ अदा होते हैं। अब इन 6 हरूफ को हरूफ हल्की भी कहते हैं, यानी जो हलक से अदा होते हैं। तो हमारे 7 मखरज जो हैं वो हो चुके हैं, जो 4 आज़ाए तकल्लुम से अदा हो, यानी 1 जौफ से, 2 शफतैन से और 1 खैशूम से, और 3 हो गए हलक से। तो ये 7 मखरज जो है ये 4 आज़ाए तकल्लुम में वाक़े हैं। अब बाकी 1 आज़ाए ज़बान या लिसान जो है, अरबी में लिसान कहते हैं, तो ये ज़बान जो है 1 आज़ाए तकल्लुम है जिसमें बहुत ज्यादा हरूफ के मखारिज दूसरे आज़ाए तकल्लुम की निस्बत इसमें ज्यादा मखारिज जो है वाक़े हैं। तो इसमें 10 मखारिज वाक़े हैं जो ज़बान से अदा होते हैं। तो सबसे पहला मखरज जो है वो है क़ाफ का मखरज। अब हमने पढ़ा था कि ज़बान के जो है एक जड़ होती है और एक दरमियाना हिस्सा और एक नोक होती है ये, और फिर इसकी साइडें। तो ये ज़बान के हिस्से थे। अब इसकी जो जड़ है, यानी यहाँ जो कव्वे के नीचे होती है, यहाँ से ज़ुबान शुरू होती है, वो जगह इस कौवा घंटी के जो ये जहाँ नीचे जा रही है उस इसकी नोक कह लें या इब्तदा कह लें, वहाँ ज़बान की जड़ टकराने से जो है काफ अदा होती है। अब काफ कौन सी है? जो 2 नुक्तों वाली होती है। 2 नुक्तों वाली काफ जो है वो यहाँ से हमने अदा करनी है। तो इसको मतलब थोड़ा मोटा भारा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से अदा हो जाएगी। जैसे ऑफ 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 ऑफ, इसको थोड़ा मोटा भारा करके पढ़ेंगे तो ये यहाँ से अदा हो सकती है। कुल सूरत इखलास के शुरू में आती है कुल। इसके बाद दूसरा मखरज जो है ज़बान की जड़ और कव्वे का आखिरी हिस्सा जो होता है और तालु का वो हिस्सा जो कव्वे के साथ है, यानी ये वाली जगह ज़बान की जड़ और ये कव्वे की ये वाली जगह जो है, यानी ये तालु और कव्वे की जगह जो है ये साथ, यहाँ से ये दूसरी काफ अदा हो। आप इस तरह पढ़ेंगे तो यहाँ से जो है ये ज़बान यहाँ पर टकराएगी इस जड़ और ये अदा हो, जबकि दूसरी काफ जो है इसके नोक के साथ टकराएगी तो वो अदा होगी। इसके बाद तीसरा मखरज जो है 3 हरूफ वहां से अदा होते हैं, जीम शीन और या। तो वो है ये ज़बान का दरमियानी हिस्सा और इसके बराबर जो तालु होता है इसका दरमियानी हिस्सा, यानी तालु का भी दरमियानी हिस्सा और ज़बान का भी दरमियानी हिस्सा, इसको आपस में टकराने से ये 3 हरूफ जो हैं अदा होते हैं। इनको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जीम 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 जीम, शीन शीन शीन, या इस तरह पढ़ेंगे ना तो ये ज़बान का दरमियानी हिस्सा और तालु का दरमियानी हिस्सा ये आपस में टकराएंगे, जैसे ये हरूफ अदा होते हैं। अब इन दोनों के दरमियान को, यानी ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान को शजर कहते हैं, इसलिए ये 3 हरूफ इनको हरूफ शजरिया भी कहते हैं। इसके बाद अगला मखरज जो है वो है गौद का। इसको बाज़-औक़ात कुछ लोग दुआत पढ़ते हैं, कुछ गौद पढ़ते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको अदा कैसे करना है उसके लिए ये ज़बान का किनारा जो है, ये किनारा
या ये किनारा, यानी चाहे आप दाएं अदा करें या बाएं अदा करें, दोनों तरफ से कर सकते हैं। इस जबान को आपने दांतों के ऊपर ये दाढ़े जो हैं, चाहे इस साइड वाला किनारा इस साइड पे लगाएं या इस साइड वाला किनारा इधर लगाएं, तो ये ज़वाद जो है अदा होता है। अब आप इसको अदा करने की कोशिश भी कर सकते हैं। बहुत 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 यानी ऊपर वाली ये दाढ़े जो है, क्योंकि हर दांत का अलग अलग नाम है, यहाँ से दाढ़े जो है, इन दानों के शुरू में लगाने से जो है ये बहुत अदा होता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इन हरूफ की अदायगी जो है या हरूफ के मखरज जो है आपको मालूम हो जाए। इसके बाद अगला मखरज जो है वो है हर्फ लाम का। इसका मखरज जो है, जो जबान की नोक है, इसको इन दांतों के सनाया, रुबाया और ये जो दांत हैं, इनके मसूड़े जो हैं, यानी यहाँ से ये उग रहे हैं, उस जगह जो है जबान लगाने से लाम अदा होता है। अब आप लाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाम 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 अदा हो, यानी सनाया, बाया और अनिया ये जो दांत है, ये यहाँ जड़ में जो है जबान लगाने से हर्फ लाम अदा। इसके बाद अगला मखरज जो है वो है हर्फ नून का। इसका मखरज जो है जबान की नोक और सनाया और रुबाया के मसूड़े, ये जो सनाया और ये इसके साथ वाले रुबाया, इनके मसूड़ों जबान की नोक को लगाने से जो है अदा होता है। बाकी ज्यादा दांतों के जबान नोक लगाने से नाम अदा होता है। इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अगला मखरज जो है वो है रा। इस रा को अदा करने के लिए ये जबान की नोक और ये सनाया जो है, सिर्फ सनाया, इनके मसूड़े जो है, ये जड़ में ये जबान की नोक लगाने से जो है हर्फ रा अदा होता है। तो इसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, रा 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 रा, सनाया से थोड़ा पीछे आप जबान की नोक को लगाएंगे, हर्फ रा अदा होगा। उसके बाद अगला मखरज जो है उसमें 3 हर्फ जो है अदा होते हैं, वा दाल ता। अब ये जबान जो है इसका नोक से थोड़ा सा पीछे ये वाली जगह, ये जगह सनाया से, सनाया के मसूड़ों की जड़ में और थोड़ा पीछे जो है ऊपरी हुई जगह ताल, उससे जबान टकराने से जो है ये हरूफ अदा होते हैं। तो इसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, वा 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 ता 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 दाल दाल, ये 3 हर्फ। इसके बाद अगला मखरज जो है इससे भी 3 हर्फ जो है अदा होते हैं, स्वाद, सीन और जा। अब इनका मखरज जो है, इसके लिए भी जबान की अगले हिस्से की सतह जो है, यानी अगले से थोड़ा पीछे ये ऊपर वाली जगह जो है, और सनाया उलिया के मसूड़े, यानी सनाया उलिया के मसूड़े उससे थोड़ा पीछे हमवार जगह होती है, सीधी जगह होती है, और वहां से जो है यानी यहाँ पर जबान के ये सतह लगाने से ये 3 हर्फ जो है अदा होते हैं। तो अब आप इनको अदा करने की कोशिश करिएगा। फौद 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 फौद, सीन सीन सीन, रा रा। इस तरह आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तीनों हरूफ जो हैं जबान की अगली सतह और सनाया उलिया के मसूड़ों से थोड़ा पीछे हमवार सतह जो ताल्लुकी है, वहां पर जबान लगाने से हर्फ जो है अदा होते हैं। इसके बाद अगला मखरज और आखिरी मखरज 10वां मखरज जो है उससे 3 हर्फ अदा होते हैं। उसमें नो के जबान के साथ किनारा जो है, ये नो के इससे थोड़ा साइड में जो हिस्सा है उसको सनाया उलिया के किनारे, ये सनाया उलिया है, इनके किनारों पर लगाने से जो है वो हर्फ अदा होते हैं। यानी जबान का चाहे दायां साइड हो या बाएं साइड हो, नोक से थोड़ी सी पीछे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे जो है साइड, वो आपने सनाया उलिया के किनारों पर लगानी है। तो इसके लिए ये हर्फ अदा होते हैं, वा वा वा, लाल लाल लाल, सा सा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा। तो ये थे आज़ाए तकल्लुम 5, जिनमें 17 मखारिज वाक़े हैं और इन 17 मखारिज से तमाम तहज्जी को हम अदा करते हैं। बार बार देखकर आप इनके मखरज याद करने की कोशिश करिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर तौर पे तजवीज़ अदा करने का तरीका सीख पाएं।